Hello professionals, welcome back to the series of learning how to make MIS and dashboards in all three functions of human resources, which are recruitment, HR operations and learning and development. लास्ट दो वीडियोस में आपने ये सीखा कि कैसे आप रिक्रूटमेंट और HR ऑपरेशंस में डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं और कौन से वो मैट्रिक्स हैं जिन्हें यूज करके आप अपने डे टू डे HR वर्क को बिजनेस गोल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। नंबर वन, हाउ टू मेक डैशबोर्ड्स यूजिंग MIS in learning and development function, and number two, we will also learn about those metrics which will help you to connect your learning and development function goals to business goals. So, are you excited to learn? If yes, then stay connected till the end of the video, and now let's get started. First of all, let me clarify how can you align your L&D function goals to business goals, and then we will understand about all other metrics which you can use and showcase in your L&D dashboard. So whatever are the goals for your business or for your organization for next 1 or 2 years down the line, you simply have to make L&D function goals on the same lines. Let me help you to understand this thing with one example. In one of my last organization, every year organization used to decide a priority for the company, and that priority used to be different for each year. In one year, company had a priority to deliver 1800 plus flats to customers, क्योंकि कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में एक साल में 1800 से ज़्यादा फ्लैट कभी भी एक साथ हैंडओवर नहीं किए थे. And moreover, company decided to track net promoter score of customers' experience while getting the handover of their flats. So L&D team simply aligned their goals to business goals, which was to enhance customer experience, to increase net promoter score. So whatever the training were required to enhance customer experience, those training were given to core handing over team, and the people received multiple internal and external training throughout the year, which included processes training, different type of soft skills training like communication skill, teamwork, coordination skills, how to handle customers objection, how to give wow experience to customers, and there were different type of other trainings which the people received. And at the end of the year, company had 70% plus net promoter score against the priority of that year. I'm not saying कि company को ये NPS score सिर्फ training की वजह से मिला, but certainly training was one of the reason behind it. So now when you have understood कि कैसे आप L&D function के goals को business goals के साथ connect कर सकते हैं, now understand about all other metrics which you can use and showcase in your L&D dashboard. So number one matrix which you can track and show in your dashboard, that is training calendar execution percentage. इस मैट्रिक्स के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि जो भी ट्रेनिंग कैलेंडर आपने साल के स्टार्टिंग में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्लान किया था, उसमें से कितना ट्रेनिंग कैलेंडर आपने एग्जीक्यूट किया, कितनी ट्रेनिंग्स आपने ऑर्गेनाइज करवाई. कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ट्रेनिंग कैलेंडर आपने प्लान किया था वो प्लानिंग में ही रह गया और वो रियलिटी में एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया. So you need to track this figure to understand your training calendar execution percentage. I will also show you how can you track this figure. But before that, I want to clarify one thing कि इस सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में जहाँ पर हमने रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड बनाना सीखा था, वहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि MS एक्सेल के पिवट फंक्शन को कैसे आप यूज़ करके डैशबोर्ड बना सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दोबारा से पिवट फंक्शन की यूसेज के बारे में नहीं बताऊंगी. मैं दोबारा से ये नहीं बताऊंगी कि पिवट टेबल कैसे बनाते हैं, बट मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि कौन सी पिवट टेबल बनानी है और कैसे आप इस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सेल. सो टू अंडरस्टैंड ट्रेनिंग कैलेंडर एग्जीक्यूशन परसेंटेज, सबसे पहले हमारे पास एक ट्रेनिंग कैलेंडर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि आपकी पूरे साल की ट्रेनिंग्स की प्लानिंग होनी चाहिए कि पूरे साल में आप अपनी कंपनी में कौन कौन सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं. आई अंडरस्टैंड कि पूरे साल की ट्रेनिंग एक साथ प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में अप्रैल के मंथ में आप ये प्लानिंग नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर मार्च में आप कौन सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाएंगे. बट एटलीस्ट आपके पास एक बेसिक ड्राफ्ट अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप हर क्वार्टर उसे फाइन ट्यून कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द डमी ट्रेनिंग कैलेंडर विच आई हैव फॉर द ईयर 2019-20. डाटा थोड़ा सा पुराना है, बट आई थिंक इट शुड बी ओके, क्योंकि हमें सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि ट्रेनिंग कैलेंडर एग्जीक्यूशन परसेंटेज हम कैसे पता करेंगे. सो इस ट्रेनिंग कैलेंडर में मैंने ट्रेनिंग का नाम, ट्रेनिंग का मंथ, टारगेटेड ऑडियंस कि किस ऑडियंस के लिए मैं ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवा रही हूँ, नॉमिनेशंस टू बी टेकन बाय कि मुझे लाइन मैनेजर से किस डेट तक ये नॉमिनेशन लेने हैं, ये इन्फॉर्मेशन लिखी है.
उसके बाद फाइनल ट्रेनिंग डेट और ट्रेनिंग स्टेटस, इन दोनों कॉलम्स को आप ट्रेनिंग हो जाने के बाद फिल कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेनिंग हुई है तो आप फाइनल ट्रेनिंग डेट यहाँ पर लिखेंगे और ट्रेनिंग स्टेटस में आप डन मार्क कर देंगे। और अगर ये ट्रेनिंग आपकी किसी भी रीज़न से नहीं हुई है या पोस्टपोन हो गई है तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद रिमार्क्स कॉलम में ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी रिमार्क्स है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। एज एन एग्जाम्पल, नेगोशिएशन स्किल्स की ट्रेनिंग को मुझे 5 बैच में एग्जीक्यूट करना पड़ा था क्योंकि मेरे पास इतने सारे नॉमिनेशंस थे। तो इस तरह के रिमार्क्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ इफ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रेनिंग कैलेंडर एग्जीक्यूशन परसेंटेज को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ पीविट ऑफ दिस डेटा। बट जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इस वीडियो के लिए मैंने पीविट टेबल ऑलरेडी बना रखी है, क्योंकि इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में जहाँ पर हमने रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड बनाना सीखा था, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि पीविट टेबल कैसे बनाते हैं। तो मैं दोबारा से वो आपको नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि मैंने इस पीविट टेबल में कौन कौन से हेड को लिया है। सो रो लेवल में मैंने ट्रेनिंग स्टेटस को लिया है और सेम हेड को मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ में लिया है। और यहाँ पर मेरी पीविट टेबल में ये इन्फॉर्मेशन शो हो रही है कि टोटल 30 में से मैंने 26 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई हैं और 4 ट्रेनिंग मेरी पेंडिंग है। दैट मीन्स 87% ट्रेनिंग कैलेंडर मैंने एग्जीक्यूट किया है। नाउ इफ आई हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ दिस डेटा, तो इंसर्ट में जाकर मैं कोई भी ग्राफ चूज कर सकती हूँ। इसके लिए मैं पाई चूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें इस डेटा को मैं बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। डेटा लेवल्स में यहाँ पर ऐड कर दूंगी, ये अच्छे से नजर आए इसलिए मैं इनको ग्राफ से बाहर दिखा रही हूँ। ग्राफ को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, इसे मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगी ट्रेनिंग कैलेंडर एग्जीक्यूशन परसेंटेज। बेसिक फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे कर देंगे और सेम हेडिंग मैं यहाँ पर दूंगी ट्रेनिंग कैलेंडर एग्जीक्यूशन परसेंटेज और इसे मैं लिखूंगी YTD, दैट मीन्स ईयर टिल डेट, कि ईयर में कभी भी अगर आप ये अपना डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस डेट तक आपने अपना कितना ट्रेनिंग कैलेंडर एग्जीक्यूट किया है वो परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होगी। और इस सेल को मैं लिंक कर दूंगी इस पर्टिकुलर सेल से जहाँ पर हमने परसेंटेज निकाली थी। और इसको आप चाहें तो ग्रीन कलर से हाईलाइट कर सकते हैं या जिस भी कलर से आप चाहें उस कलर से आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट मैट्रिक्स जहाँ पर आप ये दिखा रहे हैं कि आपने अपना कितना ट्रेनिंग कैलेंडर एग्जीक्यूट कर लिया है। Now we will understand about second matrix and that is participation rate in the training. इस मैट्रिक्स के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि जो भी ट्रेनिंग्स आप अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उसमें कितने एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड व्हाट कैन यू डू टू इंक्रीज दैट पार्टिसिपेशन रेट। दैट मीन्स कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेनिंग में जितने भी एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करना था, जितने भी एम्प्लॉयज़ को उस ट्रेनिंग को अटेंड करना था, उसके अगेंस्ट में कितने एम्प्लॉयज़ ने उस ट्रेनिंग को अटेंड किया और जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनके उस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करने के पीछे के रीजंस क्या हैं। इस मैट्रिक्स के थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि जो ट्रेनिंग्स आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं क्या वो आपके एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट की हैं या नहीं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो ट्रेनिंग्स आप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट तो बहुत है बट क्योंकि आपके एम्प्लॉयज़ को उनकी इम्पोर्टेंस कम्युनिकेट नहीं की गई है इसलिए वो उनके इंटरेस्ट की नहीं है। सो वट एवर इज द रीज़न यू फर्स्ट नीड टू फॉलो दिस अप्रोच टू डू द एनालिसिस। Number 1, how many employees actually attended the training against the total number of employees who were supposed to attend the training. That means participation rate in the training. Number 2, कि जिन एम्प्लॉयज़ ने ट्रेनिंग को अटेंड नहीं किया उनकी ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करने के पीछे के रीजंस क्या हैं। डू दे हैव एनी वैलिड रीजंस और दे जस्ट वांटेड टू अवॉइड द ट्रेनिंग। And then you can take your final call if you have to market your trainings in a better way in your organization to catch employees' attention, or you have to take the help of line managers ताकि मैनेजर्स उन ट्रेनिंग्स की इंपॉर्टेंस को एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट कर पाए कि क्यों वो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को किसी ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं और कैसे वो ट्रेनिंग उनके स्किल इन्हांसमेंट, उनके स्किल डेवलपमेंट में उन्हें हेल्प कर सकती है। And now we will understand how can we track this figure. To understand participation rate in the training, सबसे पहले आपको एक ट्रेनिंग MIS बनानी होगी जिसमें जो भी ट्रेनिंग्स आप कंपनी में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उससे रिलेटेड सभी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन उस MIS में होनी चाहिए। So this is one of the dummy training MIS which I have. Let me introduce all the heads of this training MIS to you कि कौन कौन सा डेटा मैं इस ट्रेनिंग MIS में मेंटेन कर रही हूँ। तो इसमें ईयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक रनिंग MIS है जिसमें आगे आने वाले बाद के ईयर्स की ट्रेनिंग डिटेल भी होंगी, इसलिए ईयर होना बहुत ज़रूरी है कि मैं ईयर के अकॉर्डिंग अपने डाटा को स्लाइस कर पाऊँ। उसके बाद नेम ऑफ द ट्रेनिंग की कौन सी ट्रेनिंग आपने ऑर्गेनाइज करवाई है
उसके बाद कैटेगरी, यहाँ पर 3 कैटेगरी मैंने मेंशन करी है। कंपनी लेड, दैट मीन्स कि कोई ट्रेनिंग जो कि डायरेक्टली आपको मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको ऑर्गेनाइज करवानी है, मगर आपके ट्रेनिंग कैलेंडर में वो प्लान नहीं थी और आपने मैनेजमेंट के कहने पे वो ट्रेनिंग करवाई। दूसरा एचआर लेड, कोई ट्रेनिंग जो एचआर ने खुद इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनाइज करवाई, जो कि आपने अपने ट्रेनिंग कैलेंडर में प्लान कर रखी थी। और तीसरा ऑपरेशन लेड, दैट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड ने आपको बोला था कि उनके टीम मेंबर्स को ये ट्रेनिंग चाहिए, बट इस तरह की ट्रेनिंग भी आपके कैलेंडर में प्लान नहीं थी। उसके बाद स्टार्ट डेट, आपकी ट्रेनिंग कब स्टार्ट हुई, एंड डेट, आपकी ट्रेनिंग कब खत्म हुई, लोकेशन, वो ट्रेनिंग आपने कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई थी, देन टाइप, क्या वो ट्रेनिंग इंटरनल थी या एक्सटर्नल थी, किसी इंटरनल एम्प्लॉय ने उस ट्रेनिंग को डिलीवर किया था या बाहर से कोई ट्रेनर आए थे उस ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर वो एक्सटर्नल ट्रेनिंग थी, देन किस कंपनी ने उस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया था, उस कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा जिसको मैंने एजेंसी का हेड दिया हुआ है। देन ट्रेनर, ट्रेनर का नाम क्या था, किस ट्रेनर ने ट्रेनिंग को डिलीवर किया था। देन ट्रेनिंग नंबर ऑफ डेज, कितने दिन की वो ट्रेनिंग थी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रेनिंग 1 से ज़्यादा दिन की हो। देन टोटल पार्टिसिपेंट्स वर सपोज टू अटेंड द ट्रेनिंग, टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स को उस ट्रेनिंग को अटेंड करना था, और उसके अगेंस्ट में टोटल पार्टिसिपेंट्स हु एक्चुअली अटेंडेड द ट्रेनिंग, कितने पार्टिसिपेंट्स ने ट्रेनिंग को अटेंड किया। देन ड्यूरेशन ऑफ सेशन, ये मैंने घंटों में लिखा हुआ है कि कितने घंटे की वो ट्रेनिंग थी। देन ट्रेनिंग आवर्स, यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल आपने कितने आवर्स की ट्रेनिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिलीवर करवाई। तो इसको आप सिंपल टोटल पार्टिसिपेंट्स अटेंडेड मल्टीप्लाई बाय ड्यूरेशन ऑफ सेशन करेंगे तो आपके ट्रेनिंग आवर्स यहाँ पर आ जाएंगे। देन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, कि आपको उस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करवाने में क्या एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा बियर करना पड़ा, चाहे वो एम्प्लॉयज के खाने को लेकर हो, उनके रुकने को लेकर हो, कैब की डिटेल हो, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद ट्रेनिंग की कॉस्ट, ट्रेनिंग की कॉस्ट क्या थी, ट्रेनर ने क्या अमाउंट चार्ज किया उस ट्रेनिंग को डिलीवर करने के लिए। एंड देन यहाँ पर टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट आ जाएगी जो कि इन दोनों का टोटल होगा। देन फीडबैक रिसीव्ड, कितने एम्प्लॉयज ने उस ट्रेनिंग का फीडबैक लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस ट्रेनिंग को 65 लोगों ने अटेंड किया, मगर फीडबैक सिर्फ 39 एम्प्लॉयज ने दिया। फॉर वट एवर रीजन बाकी एम्प्लॉयज फीडबैक नहीं दे पाए, बट एज एन एचआर आपकी जॉब ये होनी चाहिए कि आपको सभी एम्प्लॉयज से फीडबैक लेना है। देन यहाँ पर मैंने इस ट्रेनिंग के फीडबैक को नेट प्रमोटर स्कोर की तरह कैलकुलेट किया है, इसलिए यहाँ पर मैंने इन्हें डिट्रैक्टर, पैसिव और प्रमोटर के हेड में कैटेगराइज किया है। टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू कि आप नेट प्रमोटर स्कोर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये क्यों करना जरूरी है। यहाँ पर इसका नेट प्रमोटर स्कोर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, एवरेज रेटिंग भी मैंने ट्रेनिंग की कैलकुलेट करी है। उसके बाद अटेंडेंस शीट मेरे पास एम्प्लॉयज की है या नहीं, कोई भी मेरे से साल के आखिर में भी अगर पूछता है कि किन किन एम्प्लॉयज ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया था तो मेरे पास ये डाटा जरूर होना चाहिए। देन फीडबैक फॉर्म, जो एम्प्लॉयज ने फीडबैक लिखे हैं वो फॉर्म मेरे पास हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। देन पर पर्सन ट्रेनिंग कॉस्ट, दैट मीन्स कि अगर 65 एम्प्लॉयज ने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है और टोटल मेरा खर्चा इस पर 1,28,000 रुपये हुआ है, तो पर पर्सन मेरी ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है। अब जब आप इस ट्रेनिंग एमआईएस के सभी हेड्स को समझ चुके हैं, इट्स टाइम टू कैलकुलेट पार्टिसिपेशन रेट इन द ट्रेनिंग, एंड फॉर दिस यू सिंपली हैव टू मेक अ पिवट टेबल। बट जैसा कि मैंने आपको बताया पिवट टेबल मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लेट मी शो इट टू यू। सो दिस इज माई पिवट टेबल। लेट मी टेल यू कि कैसे बनी है। इसमें मैंने रो लेवल में स्टार्ट डेट को लिया है, जिसकी वजह से मेरी सारी ट्रेनिंग मंथ वाइज शो हो रही है। उसके बाद मैंने नेम ऑफ द ट्रेनिंग लिया है, जिससे ये पता चलता है कि मैंने किस मंथ में कौन कौन सी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई है। वैल्यूज में मैंने लिया है सम ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स वर सपोज टू अटेंड द ट्रेनिंग, और एक और हेड मैंने लिया है सम ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स हु अटेंडेड द ट्रेनिंग। उसके बाद कुछ इस तरह की पिवट टेबल मेरी बन गई है। ये जो अटेंडेंस परसेंटेज है ये मैंने खुद कैलकुलेट करी है। आप सिंपल टोटल पार्टिसिपेंट्स हु अटेंडेड द ट्रेनिंग, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे सम ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स वर सपोज टू अटेंड द ट्रेनिंग, तो आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह मैंने सभी ट्रेनिंग की परसेंटेज कैलकुलेट करी है कि उनमें अटेंडेंस परसेंटेज क्या थी, एंड जो मंथ वाइज एग्रीगेशन है उसे मैंने बोल्ड करके हाईलाइट कर दिया है। अब ये काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए। सो टू मेक द ग्राफ आई हैव समराइज्ड दिस टेबल, लेट मी शो इट टू यू। So here is another table which I have created out of this detailed table, जिसमें मैंने सभी मंथ्स को मेंशन कर दिया है, और जो मंथ वाइज पार्टिसिपेशन रेशियो का एग्रीगेशन है, जो अटेंडेंस परसेंटेज का एग्रीगेशन है, उस सेल को मैंने इस सेल से लिंक कर दिया है। लेट मी शो इट टू यू कि आप इसे कैसे लिंक कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ पर इक्वल टू टाइप करेंगे, और जो ये आपका मंथ वाइज अटेंडेंस परसेंटेज का टोटल है, इस सेल को इस सेल से लिंक कर देंगे, और उसके बाद
आपको यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन मैनुअली फीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पिवट टेबल में कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो इस टेबल में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे और अकॉर्डिंगली आपके ग्राफ में भी चेंजेस आ जाएंगे। नाउ इफ आई हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूंगी, इंसर्ट में जाकर कोई भी ग्राफ में चूज करूंगी। इस ग्राफ को मैं यहाँ से कट करके अपने डैशबोर्ड में यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। बेसिक फॉर्मेटिंग में करूंगी, इन बार्स को हटा दूंगी, ये मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, हेडिंग ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं डेटा लेबल ऐड कर दूंगी और यहाँ पर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करूंगी और इसको हेडिंग दे दूंगी पार्टिसिपेशन रेट इन द ट्रेनिंग। सो मेरे सेकंड मैट्रिक्स की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, जिससे कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी को भी प्रेजेंट कर सकती हूँ कि मेरे हर मंथ में ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन परसेंटेज क्या चल रही है। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई थ्रेशोल्ड है कि मिनिमम इतना परसेंटेज तो पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए, तो उस इन्फॉर्मेशन को भी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। आप शेप में जाकर यहाँ पर एक लाइन चूज कीजिए और आप उसे कुछ इस तरह अपने ग्राफ में शो कर सकते हैं। इसको आप फॉर्मेट कर दीजिए, कलर इसका ब्लैक दे सकते हैं और आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन अपनी हाईलाइट कर सकते हैं। सो एज एन एग्जांपल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में थ्रेशोल्ड पार्टिसिपेशन रेट का 80% है, दैट मीन्स कि सिर्फ आपकी एक ट्रेनिंग थी जो कि 80% से नीचे के पार्टिसिपेशन की थी, बाकी सभी ट्रेनिंग में आपका 80% से ज्यादा पार्टिसिपेशन रहा है। सो इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट सेकंड मैट्रिक्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड मैट्रिक्स। Third matrix is knowing all about, are you relying too much on external trainers or do you have pool of internal trainers available in your organization? इस मैट्रिक्स के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि जो भी ट्रेनिंग्स आप अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनमें से कितनी ट्रेनिंग एक्सटर्नल ट्रेनर्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कितनी ट्रेनिंग आपके एम्प्लॉयज़ एज एन इंटरनल ट्रेनर डिलीवर कर रहे हैं। बिकॉज इवेंचुअली वन ऑफ द गोल ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन इज़ टू डेवलप इन हाउस पूल ऑफ ट्रेनर्स, जिससे कि जो भी ट्रेनिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार कराई जाती है उसके लिए आपको एक्सटर्नल ट्रेनर्स पर डिपेंड ना होना पड़े। एंड इफ़ यू डेवलप in-house pool of trainers, then it will help you to save cost as well. And now let me show you how can you track this figure. To understand, are you relying too much on external trainers or do you have pool of internal trainers available in your organization or not? You have to make a pivot of this data, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि कितनी ट्रेनिंग्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल ट्रेनर्स डिलीवर कर रहे हैं और कितनी ट्रेनिंग आपके इंटरनल एम्प्लॉयज एज अ ट्रेनर डिलीवर कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिवट मैंने ऑलरेडी बना रखी है। सो दिस इज माय पिवट, जिसमें मैंने रो लेवल में टाइप को लिया है, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है कि ट्रेनिंग एक्सटर्नल है, इंटरनल है या इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। और वैल्यूज में मैंने लिया है काउंट ऑफ नेम ऑफ द ट्रेनिंग, जिससे कि मेरे पास हर ट्रेनिंग का काउंट आ गया है। अब इस पूरे साल में मैंने 52 ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी। हालांकि मैंने सिर्फ 30 ट्रेनिंग प्लान करी थी, बट क्योंकि मैंने कुछ ट्रेनिंग को मल्टीपल बैचेस में ऑर्गेनाइज करवाया था और कुछ ट्रेनिंग्स के लिए डायरेक्टली मेरे पास मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन आए थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेड ट्रेनिंग थी, और कुछ ट्रेनिंग्स के लिए मेरे पास डायरेक्टली डिपार्टमेंट एचओडी से इंस्ट्रक्शन आए थे जो कि ऑपरेशंस लेड ट्रेनिंग थी। सो सब कुछ मिला के टोटल मैंने 52 ट्रेनिंग्स को इस साल में ऑर्गेनाइज करवाया था। नाउ इफ आई हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ दिस डाटा, मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूंगी, इंसर्ट में जाकर मैं इसके लिए भी पाई ही चूज करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है उससे मेरा डाटा ज़्यादा अच्छे से मैं रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। इस ग्राफ को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, थोड़ा सा छोटा करूंगी ग्राफ को, बेसिक फॉर्मेटिंग करेंगे, डाटा लेबल्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब अगर आपको यहाँ पर लगता है कि डाटा लेबल यहाँ पर बहुत अच्छे से हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, तो आप इन्हें यहाँ पर ग्राफ से बाहर शो कर सकते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको नंबर्स की जगह परसेंटेज दिखानी चाहिए, तो आपको सिंपली डाटा लेबल पर क्लिक करना है, फॉर्मेट डाटा लेबल्स पर आप आएंगे और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है कि लेबल ऑप्शन में आप क्या दिखाना चाहते हैं। अगर मैं लीडर लाइंस को नहीं शो करना चाहती तो मैं इसे अनटिक कर दूंगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर वैल्यूज़ की जगह परसेंटेज दिखाना ज़्यादा सही होगा, जिससे कि ये पता चले कि कितनी परसेंटेज ट्रेनिंग मेरे एक्सटर्नल ट्रेनर्स ने करी है और कितनी परसेंटेज ट्रेनिंग मेरे इंटरनल ट्रेनर्स ने करी है। और मैं चाहूँ तो दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा सकती हूँ, बट अभी मुझे यहाँ पर परसेंटेज दिखाना ही ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं सिर्फ उसे ही टिक करूँगी। इस ग्राफ को मैं यहाँ पर हेडिंग दे दूँगी, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल ट्रेनिंग्स। बेसिक फॉर्मेटिंग हम यहाँ पर कर देंगे एंड दिस इज माई ग्राफ रेडी, विच शोज कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी परसेंटेज एक्सटर्नल और कितनी परसेंटेज इंटरनल ट्रेनिंग्स हुई हैं। So this is about third matrix. Now we will understand about fourth matrix, and that is training feedback.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो भी ट्रेनिंग्स आप अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ को पसंद आ भी रही हैं या नहीं. वी नीड टू नो देयर फीडबैक अबाउट द ट्रेनिंग्स एंड ट्रेनर्स एज वेल. जब आप अपने एम्प्लॉय से ट्रेनिंग फीडबैक लेना स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 चीज़ों के बारे में पता चलेगा. नंबर 1, कौन से वो ट्रेनर्स हैं जिनकी ट्रेनिंग्स आपके एम्प्लॉयज़ के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लाइक की जा रही हैं, और कौन से वो ट्रेनर हैं जिन्हें अपने ट्रेनिंग कंटेंट में, एम्प्लॉय कनेक्ट में या फिर ओवरऑल ट्रेनिंग डिलीवरी स्टाइल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि उनके ट्रेनिंग फीडबैक इतने अच्छे नहीं हैं. नंबर 2, आपको ये भी पता चलेगा कि आपको अपने ट्रेनिंग्स में ऐसा क्या इंक्लूड करने की ज़रूरत है जिसके थ्रू आपकी ट्रेनिंग की लाइकेबिलिटी एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा बढ़ जाएगी. बट यू नीड टू मेक श्योर कि जब भी आप ट्रेनिंग फीडबैक एम्प्लॉयज़ से लें, प्लीज़ मेक इट अनोनिमस. उसमें एम्प्लॉयज़ का नाम रिवील नहीं होना चाहिए ताकि वो बिना इस हेजिटेशन के अपना फीडबैक दें कि उनके फीडबैक के साथ उनका नाम भी रिवील होगा और फिर उन्हें उनके फीडबैक के बेसिस पर जज किया जाएगा. Another important thing which you have to keep in your mind while designing your training feedback form, and that is make your training feedback form simple and short. Because किसी को भी feedback form में बहुत ज़्यादा लिखना अच्छा नहीं लगता है. Try to relate it to yourself. Whenever you receive any email regarding the feedback of any product or services which you have used in the past, do you consider it as one of your first priority to reply that email? Of course not. That is one of the last thing which you want to do, and same is the case with employees. So please do not take much of their time and make your training feedback forms short and simple, जिससे कि आपको भी relevant information मिले और आपके employees का भी time save हो. And now we will see how will we track this figure. So I used to calculate my training feedback in Net Promoter Score form. अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, मेरी ट्रेनिंग के जितने भी फीडबैक हैं उन्हें मैंने डिट्रैक्टर्स, पैसिव्स और प्रमोटर्स की कैटेगरी में रखा है, जिससे कि मैं अपना नेट प्रमोटर स्कोर कैलकुलेट कर सकूं. नेट प्रमोटर स्कोर बेसिकली ये जानने का तरीका है कि जिन भी लोगों ने आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को यूज़ किया है, क्या वो आपके डिट्रैक्टर्स हैं. दैट मीन्स कि वो प्रोएक्टिवली मार्केट में जाके आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर बाकी लोगों को डिस्करेज करेंगे, या फिर वो आपके पैसिव कस्टमर हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट इवन हैप्पी अबाउट योर प्रोडक्ट, बट एट द सेम टाइम they are not even dissatisfied about your product, so they are just okay about it. या फिर वो आपके प्रमोटर्स हैं. दैट मीन्स जो प्रोएक्टिवली मार्केट में जाके आपके प्रोडक्ट और सर्विस को बाकी लोगों के बीच में प्रमोट करेंगे और उन्हें उस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने के लिए एनकरेज करेंगे. लेट मी शो यू कि आप कैसे अपना नेट प्रमोटर स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले इसकी ग्रेडिंग हम समझ लेते हैं. ट्रेनिंग का एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगी. अगर कोई भी एम्प्लॉयज जो आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं वो आपको उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए आउट ऑफ 10 6 या उससे कम की रेटिंग देते हैं, दैट मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए डिट्रैक्टर्स हैं. वो ट्रेनिंग रूम से बाहर जाकर प्रोएक्टिवली बाकी एम्प्लॉयज़ को उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए डिस्करेज करेंगे. अगर वो आपको 7 या 8 की रेटिंग देते हैं, दैट मीन्स दे आर योर पैसिव कस्टमर्स, दे आर नॉट इवन हैप्पी अबाउट दैट ट्रेनिंग, एंड एट द सेम टाइम दे आर नॉट इवन डिससेटिस्फाइड अबाउट दैट ट्रेनिंग. एंड द वन हु आर गिविंग यू रेटिंग ऑफ 9 और 10, दैट मीन्स दे आर योर प्रमोटर्स. वो ट्रेनिंग रूम से बाहर जाकर प्रोएक्टिवली बाकी एम्प्लॉयज़ के बीच में उस ट्रेनिंग को प्रमोट करेंगे और उन्हें उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए एनकरेज करेंगे. और नेट प्रमोटर स्कोर को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है दैट इज परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स माइनस परसेंटेज ऑफ डिट्रैक्टर्स. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए 39 फीडबैक मिले हैं, जिसमें से मेरे 0 डिट्रैक्टर्स हैं, 13 पैसिव एम्प्लॉयज़ हैं और 26 मेरे प्रमोटर्स हैं. और मेरी ट्रेनिंग का एनपीएस स्कोर होता है 66.67%. अब अगर सभी ट्रेनिंग के एनपीएस स्कोर को मुझे अपने ट्रेनिंग डैशबोर्ड में दिखाना है तो सबसे पहले मुझे इसकी एक पीवीट बनानी होगी जो ऑलरेडी मैंने बना रखी है. लेट मी शो इट टू यू. यहाँ पर मैंने रो लेवल में स्टार्ट डेट को लिया है और उसके नीचे लिया है नेम ऑफ द ट्रेनिंग को, और वैल्यूज में मैंने लिया है एवरेज ऑफ एनपीएस स्कोर को. अब इस स्टार्ट डेट की वजह से मेरी ट्रेनिंग के सारे फीडबैक मुझे मंथ वाइज शो हो रहे हैं, और किसी भी मंथ में अगर मैं क्लिक करूंगी तो उस मंथ में जो भी ट्रेनिंग हुई है उन ट्रेनिंग का इंडिविजुअल एनपीएस स्कोर मुझे यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जो कि मैं किसी को भी प्रेजेंट कर सकती हूँ. अब इस पूरे डेटा का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूँगी, इंसर्ट में जाकर एक ग्राफ में यहाँ पर चूज़ करूँगी और उसे मैं अपनी डैशबोर्ड वाली शीट में पेस्ट कर दूँगी. इसके बाद जिन चीज़ों की ज़रूरत मुझे नहीं है वो मैं यहाँ से हटा दूँगी. ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करूँगी मैं, और मैं यहाँ पर डेटा लेवल सेट कर दूँगी. इस पर्टिकुलर ग्राफ को मैं हेडिंग दूँगी ट्रेनिंग फीडबैक
NPS, जिससे कि सबको पता चले कि ये NPS स्कोर है और ये एवरेज रेटिंग नहीं है। इसके बाद अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रेनिंग फीडबैक को लेकर कोई थ्रेशोल्ड है कि मिनिमम ट्रेनिंग का फीडबैक इतना तो होना ही चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे कि मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम ट्रेनिंग फीडबैक जो मुझे मेंटेन करना होता था दैट वाज 70% कि हर ट्रेनिंग का फीडबैक मिनिमम 70% तो होना ही चाहिए और मैं उसे इस लाइन के थ्रू शो कर सकती हूँ। अब ये क्लियरली पता चल रहा है कि मेरी कितनी ट्रेनिंग ऐसी हैं जो कि 70% से अबव जिसमें NPS स्कोर है और मेरी कितनी ट्रेनिंग ऐसी है जिनका NPS स्कोर 70% से कम है। So this is about fourth matrix. Now let's move towards fifth matrix. But before that, I have a small question to ask. Are you really finding this video informative, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. Fifth matrix is all about tracking of your training budget. इस मैट्रिक्स के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि साल के स्टार्टिंग में जो भी ट्रेनिंग बजट आपको एलोकेट किया गया था उसके अगेंस्ट में आपने आज तक कितना बजट यूज कर लिया है। एंड नाउ लेट मी शो यू हाउ कैन यू ट्रैक दिस फिगर। ट्रेनिंग MIS में हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट और टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट को लिया है, इसके थ्रू हम अपने ट्रेनिंग बजट की ट्रैकिंग बहुत इजीली कर पाएंगे। एंड टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ पिवट जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है। लेट मी शो इट। इसमें मैंने रो लेवल में स्टार्ट डेट को लिया है जिसकी वजह से मेरी सभी ट्रेनिंग्स मुझे यहाँ पर मंथ वाइज शो हो रही है। उसके नीचे मैंने नेम ऑफ द ट्रेनिंग को लिया है। फिर वैल्यूज में मैंने सम ऑफ ट्रेनिंग कॉस्ट को लिया है, सम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को लिया है एंड सम ऑफ टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट को लिया है। और अगर यहाँ पर किसी भी मंथ में मैं क्लिक करती हूँ तो उस मंथ में जो भी ट्रेनिंग हुई है उनके इंडिविजुअल एक्सपेंसेस की डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। नाउ हियर आई हैव माई पिवट जिसमें ग्रैंड टोटल भी दिखा रहा है। अब बजट की ट्रैकिंग करने के लिए इस टेबल को मैंने मैन्युअली क्रिएट किया है क्योंकि यहाँ पर आपको बजट अलॉटेड की फिगर भी लिखनी होगी। सो इसके जो हेड्स हैं वो है ट्रेनिंग बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट एंड LMS एंड कंटेंट क्रिएटिंग टूल। अब ये एडिशनल हेड मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए लिया है कि ट्रेनिंग बजट में और किस किस तरह के एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं जो कि आपको ट्रेनिंग बजट को डिसाइड करते समय काउंट करने हैं। कंटेंट क्रिएटिंग टूल का जो यूज़ किया जाता है वो ट्रेनिंग कंटेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको वीडियोस बनाने हैं या LMS के थ्रू कोई कंटेंट अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाना है, और LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ जो कंटेंट आपने डिज़ाइन किया है कंटेंट क्रिएटिंग टूल के थ्रू वो एम्प्लॉयज़ तक पुश करने के लिए किया जाता है कि उस कंटेंट को आप एम्प्लॉयज़ तक कैसे पहुंचाएंगे, दैट इज थ्रू LMS विच इज़ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब ट्रेनिंग बजट में सपोज कि मुझे 30 लाख का बजट अलॉटेड था, उसके अगेंस्ट में मेरे जो एक्सपेंसेस हुए हैं दिस इज द ग्रैंड फिगर कि मैंने इतना अमाउंट अभी तक यूज कर लिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव बजट के लिए मुझे 15 लाख का बजट अलॉटेड था, उसके अगेंस्ट में मैंने इतना अमाउंट अभी तक यूज कर लिया है। अब LMS एंड कंटेंट क्रिएटिंग टूल के लिए सपोज कि मुझे 6 लाख का बजट अलॉटेड था और मैंने वेंडर के साथ कॉस्ट नेगोशिएट करके उसे 480 में क्लोज कर लिया है। एंड हियर आई हैव कैलकुलेटेड परसेंटेज कि कितना बजट मैंने अभी तक यूज कर लिया है हर हेड के अगेंस्ट में, और यहाँ पर मेरी टोटल परसेंटेज भी शो हो रही है। नाउ इफ आई हैव टू मेक अ ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा, तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगी, कॉलम में से एक ग्राफ में यहाँ पर चूज करूंगी और इस ग्राफ को मैं यहाँ पर अपने डैशबोर्ड में पेस्ट कर दूंगी। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें मैं यहाँ पर हटा दूंगी। इसको मैं हेडिंग दूंगी बजट ट्रैकिंग, और यहाँ पर हमने जो परसेंटेज कैलकुलेट करी है वो लिखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि जब भी आप अपने डाटा को किसी सीनियर के सामने प्रेजेंट करें तो उन्हें बहुत क्लियरली पता चले कि आपने कितना बजट अभी तक यूज़ कर लिया है। दिस इज़ अ वे यू शुड ऑलवेज रिप्रेजेंट योर डाटा। यहाँ पर डाटा लेवल्स में ऐड कर दूंगी। अब ये जो फिगर्स की ओवरलैपिंग हो रही है ये हम फाइनल फॉर्मेटिंग के टाइम पर सही कर देंगे। सो अब मेरा ये HR डैशबोर्ड ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ इसमें फॉर्मेटिंग करनी बची है, ग्राफ की सीक्वेंसिंग अरेंज करनी बची है, उनका साइज अरेंज करना बचा है जो भी हम फाइनल फॉर्मेटिंग के टाइम पर सही कर देंगे। सो टू सेव योर टाइम जो ग्राफ्स की सीक्वेंसिंग अरेंज करना है, कलर फॉर्मेटिंग है, उनका साइजेस हैं वो मैं अपने एंड पे ही फॉर्मेट कर लूंगी
क्योंकि उसमें आपको सिखाने जैसा एज सच कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है एंड आई विल ओनली प्रेजेंट यू फाइनल डैशबोर्ड। सो दिस इज आवर फाइनल ट्रेनिंग डैशबोर्ड जिसमें सारे ग्राफ सीक्वेंसली अरेंज्ड हैं। लेट मी शो इट टू यू। इसमें फर्स्ट ग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि जो भी आपने ट्रेनिंग कैलेंडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान किया था ईयर के स्टार्टिंग में, उनमें से आपने कितनी ट्रेनिंग एग्जीक्यूट करी है, कितनी पेंडिंग है, और यहाँ पर एग्जीक्यूशन परसेंटेज भी दिखाई दे रही है, जिससे कि ये क्लियरली किसी को भी समझ आ जाएगा कि आप अपना ट्रेनिंग कैलेंडर सही स्पीड में एग्जीक्यूट कर रहे हैं या नहीं। देन सेकंड ग्राफ में आपकी पार्टिसिपेशन रेशियो की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिससे कि ये पता चलेगा कि जो ट्रेनिंग्स आप अपनी कंपनी में करवा रहे हैं क्या वो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट की हैं या नहीं, क्या एम्प्लॉयज़ उन ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं, और कितनी ट्रेनिंग ऐसी हैं जिसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड के अगेंस्ट में कम पार्टिसिपेशन रेशियो रहा है। और यहाँ पर आपका ईयर टिल डेट, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ईयर टिल डेट आपका जो भी पार्टिसिपेशन रेशियो है वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, जो कि आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि वो थ्रेशोल्ड लेवल से कम है या ज़्यादा है। देन थर्ड ग्राफ में यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ट्रेनिंग्स, कि जो भी आपने ट्रेनिंग करवाई है उनमें से कितनी ट्रेनिंग ऐसी हैं जो कि आपके इंटरनल एम्प्लॉयज़ ने एज अ ट्रेनर डिलीवर करी हैं, और कितनी ट्रेनिंग्स ऐसी हैं जिसके लिए आपने एक्सटर्नल ट्रेनर्स की हेल्प ली है। तो इस ग्राफ के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन क्लियरली पता चलेगी कि क्या आपके पास इंटरनल ट्रेनर्स का पूल अवेलेबल है या फिर अपनी हर ट्रेनिंग के लिए आप एक्सटर्नल ट्रेनर्स पर डिपेंड हैं। नाउ कमिंग टू फोर्थ ग्राफ, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग एनपीएस, नेट प्रमोटर स्कोर, ट्रेनिंग का फीडबैक क्या है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ में अवेलेबल है। यहाँ पर आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड भी क्लियरली विजिबल है कि 70% आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ और है तो आप अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर ईयर टिल डेट आपका क्या ट्रेनिंग का एनपीएस चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर विजिबल है। देन फिफ्थ ग्राफ में आपकी इन्फॉर्मेशन है बजट ट्रैकिंग की, जिसके थ्रू ये पता चलेगा कि जो भी आपको ट्रेनिंग के लिए बजट अलॉट किया गया था उसके अगेंस्ट में आपने कितना बजट यूज कर लिया है। So that's how our final training dashboard is looking like. And if you will present this dashboard to your seniors, I'm sure they will appreciate the fact how you are using your day-to-day information to connect to big business goals. And with this video, we are done with the series of learning how to make MIS and dashboards in all three functions of human resources, which are recruitment, HR operations, and learning and development. If you have any other topic in your mind which you want to learn, then please let me know in the comment section and I'll be happy to make a video on that topic. Another important thing, if you want to make your career in HR or if you have just started your career in HR, then I have designed this complete playlist of human resources specially for you, which will give you a practical knowledge how does HR function work in any organization and how can you grow in HR.